Video we will discuss some previous year board questions, ठीक है, of the chapter mole concept and stoichiometry. So this question, consider this question. You have to consider the following reaction and answer the questions that follows. So here in this question, ammonium dichromate on heating is producing nitrogen gas, 4 molecules of water and chromium 3 oxide. First you have to calculate the quantity in moles of ammonium dichromate if 63 gram of ammonium dichromate is heated. You have to calculate the number of moles in 63 gram of ammonium dichromate. ठीक है. So in order to calculate the number of moles, for the formula of number of moles is n is equivalent to mass given upon molar mass. ठीक है. So mass given here is 63 gram and molar mass of ammonium dichromate you have to calculate. The formula is NH4 whole twice Cr2O7. ठीक है. So 2 times ammonium ion is there. So 2 into, and in ammonium ion 1 nitrogen and 4 hydrogen. Nitrogen has atomic mass equivalent to 14 and each hydrogen has atomic mass equivalent to 1 and 4 hydrogens are there. So 4 into 1 is 4. ठीक. So 2 into 14 plus 4 हो गया ammonium ion and Cr2. 2 times chromium. 2 chromium atoms are there in 1 molecule of ammonium dichromate and each with atomic mass 52. So 2 into 52. ठीक. Plus how many oxygen atoms are there? 7 oxygen atoms are there. ठीक है. And each with atomic mass equivalent to 16. ठीक है. So you can calculate here 63 upon 14 plus 4 is 18. So 2 into 18 plus 2 into 52 plus 7 into 16. ठीक है. So अब इसको फर्दर कैलकुलेट कर लो. 2 into 18 is 36. 36 plus 2 into 52 is 104 plus 7 into 16 is 7 into 16 कितना हो जाएगा 112. ठीक है. अब इन सबको ऐड करो कितना आ गया 63 upon 63 4 252. ठीक है. 1/4 1/4 moles और 0.25 moles is the answer. ठीक है बेटा. Now next part, the quantity in moles of nitrogen formed. The quantity in moles of nitrogen formed you all know here. इस इक्वेशन से देख के समझिए बेटा. 1 मोल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस. ठीक है. तो अब आप बेटा यहाँ पे 0.25 मोल लिया है किसका अमोनियम डाइक्रोमेट का, तो 0.25 नाइट्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड हियर. ठीक. तो क्वांटिटी इन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्ड विल बी सेम, दैट इज 0.25 मोल. ओके बेटा. 1 मोल दे रहा था. 1 मोल अमोनियम डाइक्रोमेट वाज ऑन हीटिंग प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन. सो 0.25 मोल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट विल प्रोड्यूस 0.25 मोल ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है. नाउ द वॉल्यूम इन लीटर्स और डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन इवॉल्व्ड एट एसटीपी. ठीक है. अब बेटा इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, n इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन upon molar volume, that is 22.4 liter. ठीक है. Volume given you have to calculate and you already have calculated, that is 0.25 moles of nitrogen gas was being produced when 0.25 moles of ammonium dichromate were being heated. ठीक है. तो and volume given you have to calculate is equivalent to V upon 22.4 liter and V is equivalent to 22.4 liter into 0.25. You can calculate it now and the answer will be in liter. ठीक है. Now the mass in grams of chromium 3 oxide formed at the same time. You have to calculate the mass in grams of chromium 3 oxide formed at the same time. ठीक है बेटा. अब आप देखिए 1 मोल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ chromium 3 oxide. ठीक है. तो 0.25 मोल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट विल प्रोड्यूस 0.25 मोल्स ऑफ chromium 3 oxide. तो 0.25 मोल्स ऑफ chromium 3 oxide के लिए मास कैसे निकालते हैं. You all know that mass of 1 mole of any compound is equivalent to its molar mass. ठीक है. And mass of n moles of any compound is equivalent to n times its molar mass. तो chromium 3 oxide that is Cr2O3 के लिए for 0.25 moles of Cr2O3 हम मास निकाल लेंगे बेटा. कितना हो जाएगा 0.25 into molar mass of Cr2O3. Each chromium atom has atomic mass equivalent to 52 and each oxygen atom has atomic mass equivalent to 16. ठीक है. तो 3 into 16 हो जाएगा and 3 into 16 is 48. 2 into 52 is 104. ठीक है बेटा. तो ये हो जाएगा 0.25 into 4 plus 8 is 12 152. ठीक बेटा. तो 0.25 into 152 gram of chromium trioxide or chromium 3 oxide will be produced. You can simplify it further. Okay. Now next question is oxygen is evolved by heating potassium chlorate using manganese dioxide as a catalyst as per this equation. ठीक है. 2 moles of potassium chlorate in the presence of manganese dioxide which is acting as a catalyst here is producing 2 moles of potassium chloride and 3 moles of oxygen gas. Now what you have to find here, calculate the mass of potassium chlorate required to produce 6.72 liter of oxygen at STP. ठीक है. यहाँ पे मास पूछा गया, वॉल्यूम इज गिवन, ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया हुआ है एंड मास इज आस्क्ड, हेंस वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप विल बी अप्लाइड हियर. ठीक है. एज पर द इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज प्रोड्यूसिंग 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस. ठीक. तो आप यहीं पे लिख लो 2 moles of potassium chlorate that is KClO3 is producing 3 moles of oxygen gas. ठीक है. और ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया हुआ है एंड KClO3 दैट इज पोटेशियम क्लोरेट का मास पूछा गया है. तो बेटा इसको हम लेंगे मोलर वॉल्यूम के टर्म्स में, इसको लेंगे मोलर मास के टर्म्स में जो आइडियल कंडीशंस में लेंगे. सो फॉर 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट व्हाट विल बी द मास 2 टाइम्स इट्स मॉलिक्यूलर और मोलर मास. ठीक है. तो 2 into पोटेशियम atomic mass is 39, chlorine's atomic mass is 35.5 and that of oxygen is 16 and 3 oxygen atoms are there, hence 3 into 16 is 48. ठीक है. अब ये सारा कुछ आ जाएगा 122.5 and 3 moles of oxygen gas. ठीक है. 1 mole of oxygen gas will occupy 22.4 liter at STP, hence 3 mole will occupy 3 times 22.4 liter at STP. ठीक है. और you can say 67.2 liter at STP. ठीक. अब देखो बेटा
जब हम 2 टाइम्स 122.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को हीट कर रहे थे तब हमें ऑक्सीजन कितना मिल रहा था 67.2 लीटर. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 6.72 लीटर. अभी हमें 6.72 लीटर ऑक्सीजन ही चाहिए तो हम लेट इट बी एक्स ग्राम. लेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 6.72 लीटर ऑफ ऑक्सीजन बी एक्स ग्राम. ठीक, चलो काटापीटी करो. सो एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 122.5 ग्राम इंटू 6.72 लीटर अपॉन ऑलवेज राइट द क्वांटिटीज अलॉन्ग विद देयर यूनिट्स. ठीक है, अपॉन 67.2 लीटर. तो आंसर विल बी समथिंग 24.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट दैट इज KClO3 विल बी नीडेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 6.72 लीटर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द अबव वॉल्यूम एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों ही पता करना है इन द अबव वॉल्यूम दैट इज 6.72 लीटर्स. ठीक है, तो 6.72 लीटर्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है. नंबर ऑफ मोल्स व्हेन वॉल्यूम इज गिवन इज इक्वल टू n इज इक्वल टू v अपॉन मोलर वॉल्यूम. एंड मोलर वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है 22.4 लीटर एंड v गिवन हियर इज 6.72 लीटर अपॉन 22.4 लीटर. तो नंबर ऑफ मोल्स आपके आ जाएंगे 0.3. ठीक है, 0.3 मोल आ गया. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वेल ना. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे फॉर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन या 6.72 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर एंड नंबर ऑफ मोल्स यू ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड दैट इज 0.3 मोल्स. सो 0.3 इंटू एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10 to the power 23 एंड दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 6.72 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन. ओके, नाउ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 0.01 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP. ठीक है, दिस इज नॉट रिलेटेड क्वेश्चन, ये नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पॉइंट्स, ये दोनों देखो डिपेंडेंट हैं क्वेश्चंस. ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 0.01 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल इज गिवन और यही फॉर्मूला सेम लगेगा n इज इक्वल टू v अपॉन मोलर वॉल्यूम. ठीक, अब यहाँ पे 0.01 नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलरेडी गिवन. वॉल्यूम गिवन यू हैव टू कैलकुलेट. मोलर वॉल्यूम यू ऑलरेडी नो दैट इज 22.4 लीटर और 22400 ml और क्यूबिक सेंटीमीटर, मिलीलीटर क्यूबिक सेंटीमीटर और cc n. ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 22.4 इंटू 0.01 तो 0.224 लीटर आ गया आंसर. ठीक है बेटा, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Given that the relative molecular mass of copper oxide is 80, what volume of ammonia measured at STP is required to completely reduce 120 gram of copper oxide? The equation for the reaction is this, that is 3 moles of copper oxide on reaction with 2 moles of ammonia is producing 3 moles of copper, 3 moles of water and 1 mole of nitrogen gas. ठीक है, now volume occupied is given here that is 22.4 liter by 1 mole of gas and you all know that. ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमें क्या लिखना है इक्वेशन इन्वॉल्व. फर्स्ट राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व. सो इक्वेशन क्या है बेटा 3 moles of copper oxide on reacting with 2 moles of ammonia is producing 3 moles of copper plus 3 moles of water plus nitrogen gas. ठीक, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, आपसे बताया, आपको क्या बताया गया है बेटा इसमें कि रिलेटिव मोलर मास RMM दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड का 80. ठीक है, एंड व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिड्यूस 120 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, 3 moles of copper oxide was reacting with how many moles of ammonia? 2 moles of ammonia. ठीक है, वॉल्यूम पूछा गया है बेटा, मास गिवन है और वॉल्यूम पूछा गया है, तो मास वॉल्यूम या वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप विल बी अप्लाइड हियर. एंड 3 moles ऑफ कॉपर ऑक्साइड के लिए बेटा 1 mole ऑफ कॉपर ऑक्साइड के लिए मास इज रिलेटिव मोलर मास इज 80 ग्राम. ठीक, तो 3 moles के लिए हो जाएगा 3 इंटू 80 ग्राम एंड 2 mole ऑफ अमोनिया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आपको लेना है तो 2 इंटू 22.4 लीटर. ओके, नाउ क्या दिया हुआ है आपको 120 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, उसके लिए कितना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया रिक्वायर होगा. तो 3 इंटू 80 ग्राम को रिड्यूस करने के लिए, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया गैस वॉज रिक्वायर्ड. सो 120 ग्राम को रिड्यूस करने के लिए कितना अमोनिया रिक्वायर होगा. यू कैन कैलकुलेट, यू कैन अज्यूम इट एज x लीटर एंड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट द आंसर. कितना हो जाएगा 120 ग्राम इंटू 2 इंटू 22.4 लीटर अपॉन 3 इंटू 80 ग्राम. ओके, नाउ सिंप्लीफाई कर लोगे बेटा. 3 40 42 2 से ये काटे, यही काट देना, तो आंसर आ गया 22.4 लीटर.